Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about reading comprehensions. देखिए comprehension का मतलब क्या होता है? What do you mean by comprehend? Comprehend means to understand. And reading comprehension, it basically plays a vital role in all the students' life, in the academic life as well as non-academic life. आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी competition में, किसी भी entrance में, आप reading comprehension को हमेशा encounter करेंगे. It is one of the most infinity times important thing that comes in your life, because without reading comprehension, whole paper is just waste, right? So this is my main motive, and of course my main focus, that you should all do reading each and every day, because this will only help you out in solving all the reading comprehensions, in solving all the writing skills as well as grammar. Please focus on reading each day, and let's just begin with this reading comprehension. First, we'll be learning the rules, and then we'll be giving some 2-3 examples, and with those examples, you will be able to solve all the reading comprehensions further. And please keep revising and keep reading each day. So the title of our chapter is Comprehension Passage, right? Comprehend means to understand. The word comprehension means to understand. Comprehension का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना. कोई भी एक स्टोरेज और यू कैन से पैसेज इज गिवन टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को दिया जाता है जिससे कि वो रीड करें और उस चीज को अंडरस्टैंड करें, विच इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? एंड द मेन आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? इट इज टू टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी, कि बच्चे की एबिलिटी को टेस्ट करना कि ही और शी हैव अंडरस्टूड द स्टोरी और यू कैन से पैसेज, वो अंडरस्टूड कर पाए या नहीं. स्टूडेंट की एबिलिटी टू राइट एंड एज वेल एज एक्सप्रेस, कि अपने खुद के शब्दों में, इन योर ओन वर्ड्स, what they have understood, कि उन्होंने उस चीज को क्या समझा है. नाउ हाउ टू आंसर अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आप कैसे आंसर कर सकते हैं? फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टोरी एंड ऑफ कोर्स द पैसेज एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स, 2 बार पढ़ना चाहिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट, कि वो किस चीज के लिए है, राइट? देन ट्राई टू थिंक द टाइटल फॉर द स्टोरी, कि आप उस स्टोरी का टाइटल भी सोच पाए, ठीक है? नाउ जस्ट टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस पे देखें विच इज बेस्ड ऑन दैट स्टोरी और पैसेज. जस्ट रीड ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को पढ़ें केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इट आस्क, राइट? थर्ड वन इज रीड ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को रीड करिए एंड सर्च फॉर इट्स आंसर इन दी स्टोरी और पैसेज में. आप उनके आंसर्स को फाइंड आउट करिए एंड जस्ट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों में उसको फ्रेम करिए. यू मस्ट नॉट कॉपी द वर्ड्स ऑफ द स्टोरी इन योर आंसर्स, कि आप उनके वर्ड्स को कॉपी ना करें. फाइंड अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स को भी करें फॉर द वर्ड्स विच इज मेंशन इन द स्टोरी विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. उनका मीनिंग चेंज करे बिना आप वोकैबुलरी दूसरी यूज कर सकते हैं. मेक श्योर दैट योर आंसर्स आर क्लियर, दे आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर एंड टू द पॉइंट. बातों को घुमाने वाला आंसर ना हो. एंड राइटिंग एक्स्ट्रा विल नॉट fetch you more marks. अगर आप फालतू में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो it will definitely won't be giving you any mark, right? Just look at the mark for each question and write accordingly. If आप marks देखते हुए ही आंसर दीजिए. If it is 1 mark, then you have to give your answer in 1 line, 1 mark question, and you have to write briefly. And for the 2 mark question, you have to write accordingly to that. 2 lines, 2 marks का question है. It means you just have to frame your answer in just 3 and 4 lines, right? Moving on to the exercise, first we'll just read the passages which are given below and question the answers and try to answer in your own words. खुद के words में हम उनको answer करेंगे. First we'll be studying about, first is passage 1, right? Then what a fantabulous tour it was. वो कह रहे हैं कि क्या ही बेहतरीन ट्रिप था. An Italian tour, एक इटालियन को टूर था. That to a 16 days one, और 16 दिन का इटली का ट्रिप था. We had been प्लानिंग इट फॉर अ ईयर, हम 1 साल से उसको प्लान कर रहे थे. सेविंग एवरी पेनी, हमने बहुत सारे पैसे सेव करिए कि हम डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के साथ. एंड पोरिंग ओवर मैप्स फॉर मंथ्स, कि हमने बहुत सारा मैप को छानबीन करी. देन आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट और रेज्ड वॉइसेस की मतलब बातें डिस्कस करके, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इट वाज अनअनोनिमसली डिसाइडेड टू विजिट इटली. और हमने इतनी सारी चीज़ों पर डिबेट करी, लेकिन फिर हमने कहाँ विजिट किया? इटली में. द फैमिली अराइव्ड इन रोम, फैमिली रोम में आ गई. जेट लैग्ड, आईज फुल ऑफ स्लीप, मतलब बहुत ही ज्यादा थकावट से आंखें सूजी हुई हैं, आंखें में नींद है. इन हैड बीन अ लॉन्ग फ्लाइट, बहुत ही लंबी फ्लाइट है फ्रॉम न्यू दिल्ली. एक्चुअली द ट्रिप टू इटली, इट विल टेक एटलीस्ट 19 or 20 hours फ्लाइट, राइट? एंड आफ्टर द मोटर कोच ड्रॉप्ड अस टू द होटल, जैसे हमको कैब ने होटल पे ड्रॉप किया, ऑल ऑफ अस फेल ऑन आवर बेड्स, कि हम लोग अपने बेड पे चले गए. एंड वी जस्ट स्लेप्ट ओवर देयर.
देन वेलकम टू इटली इट वॉज कि आपको स्वागत है इटली में. आई वोक अप फॉर द फर्स्ट एंड लेटिंग आर whoops ऑफ जॉय एट द साइट ऑफ रिवर तिबर फ्रॉम द विंडो एंड वोक अप फॉर द रेस्ट ऑफ देम. कि मैंने सुबह में उठा और खुद से बोला वेलकम टू इटली, और वहां पे देखा कि आई एम वेरी हैप्पी विद द साइट ऑफ, वहां पे रिवर है तिबर फ्रॉम द विंडो से जो दिख रही है, और फिर मैंने उसको पूरा दिन निहारा. राइट. आफ्टर अ ह्यूज ब्रेकफास्ट ऑफ फ्रेश रोल्स, मैंने वहाँ पे फ्रेश रोल्स खाए, सीरियल्स खाई, दालें, डिफरेंट डिफरेंट चीजेस खाए, ऑमलेट्स खाए, फ्रूट्स खाए विच इज वॉश्ड, जो कि धुले हुए हैं, वॉश डाउन विद अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस. मैंने वहाँ पे जूस भी पिया. वी स्टार्टेड ऑन आवर टूर टू इटर्नल रोम. सबसे पहले हमने रोम गए. रोम एक सिटी है विच इज स्टेप द हिस्ट्री, जिसमें बहुत लंबी हिस्ट्री है. सो अलाइव एंड एक्साइटिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग सिटी. वेटिकन सिटी में गए हैं, सेंट पीटर स्क्वायर, when it's Michelangelo Sistine Chapel and it's a church, and then the mighty Colosseum. Colosseum is basically, आपने देखा होगा, it's very famous, right? We passed vistas of green hills. हमने green hills के पास भी गए. रोज ऑफ साइप्रस ट्री, वहाँ पे ट्री के रोज मतलब रोज यहाँ पे मतलब उसके किनारे किनारे, एंड टेरेस्ड विनयार्ड्स, वहाँ पे विनयार्ड्स हैं, ऑलिव ग्रूव्स हैं. एक्चुअली ऑलिव्स बेसिकली कम्स फ्रॉम इटली ओनली, एंड लिटिल विलेजेस ऑन द वे ऑफ फ्लोरेंस. फ्लोरेंस के लिटिल विलेज में देखिए व्हाट आर ग्रूव्स, ऑलिव ग्रूव्स. एक्चुअली में ऑलिव ग्रूव्स क्या होते हैं, आप सबने देखा होगा पिज्जा के ऊपर, आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर से रिंग जैसे स्ट्रक्चर वो लोग डाल के देते हैं उस टॉपिंग में, उन्हीं को ऑलिव्स बोलते हैं. राइट. एंड फ्लोरेंस है द सिटी विच इज फेमस ड्यूरिंग रेनांसिस. रेनांसिस मीन्स किसी चीज का रिन्यूअल, उस टाइम पे ये सिटी बहुत फेमस है. राइट. ट्रैफिक इज बैन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी. ब्यूटीफुल सिटीज में ट्रैफिक बिल्कुल बैन है, वहाँ ट्रैफिक नहीं होता. सो वी वेंट ऑन वॉकिंग आवर्स, वॉकिंग टूर्स पे गए, मतलब हम पैदल गए, टू एडमायर दी सिटी टाइमलेस ब्यूटी, की इतनी अच्छी ब्यूटी है उसकी. विजिटेड द कैथेड्रल्स, मतलब हम चर्च गए, म्यूजियम्स गए, हमने रोड साइड कैफेज पे खाया, एंड मिक्सड विद द लोकल पीपल, हम लोकल जिलेटरी से मिले. सो वार्म एंड फ्रेंडली, सब कुछ बहुत फ्रेंडली था. डेज वर जस्ट फ्लाइंग विजिटिंग पिज्जा, हम पिज्जा भी गए, मिलान, ठीक है, विरोना एंड देन वेनिस. ये सब ऑल दीज प्लेसेस दे आर इन इटली. वेनिस वॉज मोर लाइक अ मार्वलस फिल्म सिटी देन द रियल सिटी. रियल सिटी से ज़्यादा क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा शानदार फिल्मों की सिटी है. एंड विद इट्स क्रिस क्रॉसिंग कैनल्स, की उसके बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉसिंग कैनल्स हैं, गैंडोलाज हैं, ग्लाइडिंग इन देम, मतलब काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. द आर्क ब्रिजेस हैं वहाँ पे, एंड द गोल्डन पैलेसेस हैं वहाँ पे, बहुत सारे पैलेसेस भी हैं. इट वॉज सिंपली अनफॉरगेटेबल, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता. 2 days स्पेंड देयर, हम लोगों ने अपने 2 दिन बिताए. आइलैंड ऑफ कैप्री वॉज येट अनदर स्पेक्टेकुलर प्लेस, मीन्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जगह थी. क्या थी? आइलैंड ऑफ कैप्री. रॉकी कोस्ट लाइन, मेज ऑफ स्ट्रीट्स, द टाउन विद इट्स लिटिल रोड साइड कैफेज हैं वहाँ पे, फैशनेबल बुटीक्स हैं, एंड द वाइट हाउस हिडन बिहाइंड टॉल ट्रीज, और बड़े बड़े ट्रीज के पीछे सफेद रंग के बड़े बड़े घर हैं. एंड आफ्टर विजिटिंग दिस मेडिवल टाउन ऑफ असी, ये सब कहाँ है? असी में. वेयर सेंट फ्रांसिस वॉज बॉर्न, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस किंग वॉज बॉर्न. एंड द वर्ल्ड फ्रॉम बेसिलिका, दिस इज अ चर्च. वी हेडेड बैक फॉर रोम, फिर हम वापस रोम गए. एंड यस, हमारा ड्रीम हॉलीडे इट वॉज ऑल ओवर. एंड द मैग्निफिशेंट साइट्स, मीन्स वेरी ब्यूटिफुल साइट्स, द चार्मिंग कंट्री साइड, इतनी अच्छी कंट्री है, चर्चेज हैं, म्यूजियम्स हैं. इट विल रिमेन इम्प्रिंट इन आवर माइंड्स फॉर एवर, मीन्स उनकी छाप हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में हमेशा छपी रहेगी. Moving on to the question answers, please read all these question answers on your own and to write their answers in your respective notebooks. Moving on to the passage number 2, it is about trees. Trees are very beneficial to mankind. Trees हमारे लिए बहुत beneficial है. When human beings they breathe, जब हम लोग breathe करते हैं या फिर फ्यूल को बर्न करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है? We produce कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें चाहिए क्या होती है? ऑक्सीजन. ट्रीज रिप्लेस दिस कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन. लोग ट्रीज जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देते हैं. दे हेल्प अस इन डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड. डिफिकल्ट टाइम्स में हमारी मदद करते हैं. ह्यूमंस हैव कट डाउन देयर ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. ह्यूमंस अपने बड़े बड़े पेड़ जो है उन्होंने काट दिए हैं. एंड दे आर स्टिल कटिंग, और अभी भी मोर एंड मोर ट्रीज, वुड एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए वो ट्रीज को काट रहे हैं. राइट. दे आर ऑल्सो कटिंग देम टू क्लियर स्पेस फॉर एग्रीकल्चर. उनको कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर के लिए स्पेस हो. ह्यूमन हैबिटेशन मीन्स वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं खुद के रहने के लिए. एंड इंडस्ट्रीज मीन्स वहाँ पे मॉल्स वगैरह बन रहे हैं. दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड. ये प्रैक्टिस स्टॉप होनी चाहिए टू सेव द नेचुरल हैबिटेट, की उनकी नेचुरल जगह को बचा पाएं और इन्वायरमेंट को
for the living creatures, right? Then you have to complete all these question answers on your own. Just write down this in your respective notebooks. Moving on to third passage. First, it's the princess grew up to a very beautiful and a humble girl. एक कोई princess थी, जब वो बड़ी हुई तो बहुत ही ज़्यादा beautiful और humble है, और वो उसका 16th birthday, it was her 16th birthday and she was going around in a palace, और वो palace में घूम रही है. In one of the rooms, एक रूम में she saw the wicked fairy, उसने एक बहुत ही चालाक फेरी देखी with a spinning wheel. उसके हाथ में क्या था? एक spinning wheel था. The princess asked the fairy, princess ने फेरी से पूछा if she could spin it, क्या वो भी उसको स्पिन कर सकती है? The fairy agreed, फेरी ने एग्री किया. But the moment she touched it, जैसे उसको टच किया, the needle pricked her finger, कि needle उसके हाथ में फिंगर में चुभ गई, and she just fainted, और वो बेहोश पड़ गई. And as soon as she fainted, जैसे ही वो बेहोश पड़ी, all the people in the palace they were also asleep, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या हो गए? asleep हो गए, पैलेस में जो लोग थे. Many years passed, बहुत साल पास हो गए. One day a prince came their way, prince उनके रास्ते में आया and entered the palace, और पैलेस में घुस गया. And as soon as he saw the princess, जैसे उन्होंने प्रिंसेस को देखा, he fell in love with her and kissed her, उसके साथ प्यार में डूब गया और उसको प्यार करने लगा. The princess woke up, प्रिंसेस उठ गई. With her the whole place, कि वो वहाँ पे आई है लाइफ के लिए. The prince and the princess they got married, अच्छे से शादी हो गई, and they lived happily after ever after, और फिर वो अपने आप से खुशी में रहे. Again you have to complete all these fill in the blanks on your own, that is true and false. Okay, so I hope you all understood about these reading comprehensions, right? Please make sure that you have a habit of reading, and please keep revising and stay blessed. Thank you.